कनेक्टिंग टू क्लाउड सर्वर, ठीक है। दोस्त रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हुई है। So before that, we were not able to record a lecture. So once again, welcome guys back to day 0.1. We just successfully could not record our lecture, the 30 minutes before the important part of the lecture. But right now we can just again start from the zero. So just don't worry. So do let me know once you have turned on your screens. You are on your Google Colab. Guys, are you there? All right. So everyone is on their Google Colab. So just let me turn on my Google Colab. अच्छा, बुक अब तक किस किसने पढ़ी है? हम्म किस किसने अब तक बुक पढ़ी है? देखो दोस्तों, जो बुक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन डे वन स्टूडेंट वर्कबुक मैंने शेयर की थी। आई शेयर्ड, just let me go to my book. All right. So guys, ऑन हो गया आपका? यार ही शायद भाॼी जी रसी उहा इन डस्टबिन मां ॿिली जेको आहे न किरायो हेठि, हे ॿिली अचे थी न राति जो जंहिंमें रखूं था त उहा वरी डस्टबिन ई ऊंधी थी करे छॾे। हिनखे थोरो पाणी लॻंदो, हिनखे थोरो पाणी लॻंदो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनको हम म्यूट कर देते हैं। Yes, Del, you want to ask something? Yeah, please. Yeah. As I was late yesterday, I don't know. Yeah. Once in my Google Colab, where should Right. I click? All right. Just you have no idea. Can you just beg pardon? I did not understand you. Yesterday you were not in the class, so you have no idea how to start Google Colab, right? Yeah, and in the beginning, I was at the end of the class, but in the It's beginning, I totally was. fine, man. It's totally fine. We Okay. are here to, to have the knowledge from very basic. So, dude, what you have to do, first of all, I'm just gonna share my screen, and we will be starting. Mm, okay. Yet I did not open my. I was using this Windows, right? Screen, Google Chrome. Okay. So, guys, screen नजर आ रही है कि नहीं? Anyone? Can you see my screen? Yeah. Yes. Okay. So first of all, again, we have to type here Google Colab, right? Okay, inspection block हो गई है. So we have to select this button, Colab Notebook. It will move us to our Google Colab. So basically, Google Colab is a tool, or this is a virtual, or we can say integrated environment. Basically, this is an environment where we can write our code, where we can use Python in order to execute our codes, or we can write in Jupyter Notebook, we can write in Python in Google Colab. That is the interface. So first of all, what we have to do, press on the file button and click on new notebook in Drive, and then you will directly move to our new notebook in which we are going to write our code, and we have to write our code just to understand the syntax and nothing else.
in first को we have to understand about the syntax, right? अच्छा, मुझे ये बताएं कि एहसान के अलावा और किसने कोड लिखने की प्रैक्टिस की थी? Anyone who practiced writing the code, who practiced code writing? Anyone? So Rimsha has shared something. She she tried to write the code, print welcome home, day one amino acid, print day one amino acid, day two. I was done with calculation and I studied every perspective. All right. Very good Rimsha. Anyone else? Anyone else? So भाई जरा जोरदार तालियां हो जाएं, एक अच्छा सा cheer up हो जाए रिमशा के लिए. At least she did. So this is what actually matters. ये मैटर नहीं करता कि भाई आपने किले फतह कर लिए या नहीं कर लिए. मैटर ये करता है कि भाई आपने एफर्ट कितनी की है. सो एफर्ट ही है जो बेसिकली मैटर होती है. और मैटर ऑफ फैक्ट भी यही है कि वी हैव टू take some small steps, right? So, ladies and gentlemen, let's move to our code. But before writing the code, because we have Dell New here with us, we will be studying some basics, right? उसके लिए मैं आपके साथ अपनी ना बुक शेयर करूंगा. बुक आपके पास ऑलरेडी है. मैं स्क्रीन शेयर करूंगा. ठीक है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. मुझे मेरी बुक नहीं मिल पा रही. लेट मी जस्ट गेट माय बुक. माइक्रो इन्फॉर्मेटिक्स. माइक यार, नींद तो नहीं आ रही किसी को? जरा मुझे ये बताया, किसी को नींद तो नहीं आ रही आज? हम्म. पाइथन. पाइथन फॉर लाइफ साइंस स्टूडेंट्स. ऑलराइट, यही बुक है. ठीक है, वी आर गुड टू गो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ऑलराइट. So let me share my screen. Um, guys, is the book visible to all of you? बुक सबको विजिबल है? ठीक है. अच्छा जी. तो एक काम करें कि आप ना अपनी स्क्रीन को बिल्कुल मैक्सिमाइज कर लें. ऊपर से जो हमारे टैब्स नजर आ रहे हैं बेशक उनको रिमूव कर लें ताकि आपको बुक जो है उसका मैक्सिमम व्यू नजर आए. ठीक है. ऑल राइट. So we had understood setting up Python, installation of Python, VS Code versus Google Colab or other integrated environments, our first file. Right now, what we have to study is variables. Guys, line by line, we have to read this and actually we have to grip the message that is being told in this book. Here is the single most important concept in all programming. A variable is a name that points to a piece of data stored in your computer's memory. किसी को याद है कल मैंने आपको वो नोटबुक वाली एग्जांपल दी थी? I gave you the example of notebook. How we store data in our notebook versus how we store data in our, in our computer. We will recall that and we will relate that thing to this line. Guys, tell me कि आप सबको मेरी जो है वो पेपर वाली स्क्रीन नजर आ रही है? आप सबको जो मेरी पेन पेंसिल वाली स्क्रीन है, is my paper screen visible to all of you? You have to press on it and please pin right now. Right now, what you have to do, pin that paper screen. If you can please turn on your book on your phone or on another screen, but right now I want you to focus on this paper and pencil. We studied a variable is a name
that point to the specific piece of data that we store in our computer memory, right? Yesterday, we saw that whenever we collect data from our research, as we saw the example of cancer cells, and we collected the data of cancer cells, when we applied that drug on them, we had that data, we had that observations. So what we have to do, we have to store this data on our notebook, and we use a column. In column, we write the headings to show that which type of data is stored, which information is stored. If we are writing the observation which we got about proteins, we have to write about the proteins under that section. Guys, किसी का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज वो बंद कर ले. प्लीज माइक्रोफोन को बंद कर लो. आप लोगों ने करना ये है कि आपकी जो पेपर वाली स्क्रीन है ना, आपने काइंडली उसको पिन कर लेना है, तो वो आपको बड़ी नजर आने लग जाएगी. द पेपर स्क्रीन दैट यू सी ओवर देयर, just pin this, then you will be able to solve whatever we have there, right? So what we guys, सब फोकस है ना, समझ आ रहा है? Everyone is focused here, please. Just थोड़ा thumbs up करें, मुझे पता चले कि everyone is here. Right, thank you so much यार. Thank you so much for this interaction. Just keep interaction, because हम बहुत दूर दूर बैठे हैं एक दूसरे से, मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा, ना मुझे किसी की आवाज़ आ रही है, तो मेरे लिए एक थोड़ा सा इशारा ज़रूरी होता है. You know, the focus is really important. So just you can see my paper screen, right? My paper screen is visible. So where we were, so we saw that we have to make tags or headings whenever we have to write our data in our notebook. Once we write this data, we say that we have stored this data, means that we can use this data anytime. For example, we have here this again, our Ganji Shabana. So Ganji Shabana was very, a student. Ganji Shabana ki 6 टांगे हैं. I guess Ganji Shabana belongs to centipede, family, or maybe she's an arthropod. Yeah. So we have this. Nasir bhai, please अपना microphone mute कर दें. Nasir bhai. So guys, we have our Ganji Shabana here. She was working on those cancer cells, and she wrote her data in the notebook, and she got the scholarship. Which scholarship? She got Erasmus Mundus, and she flew to Germany. Right? So why Ganji Shabana got scholarship? Because always in the class, she used to tell, I don't study, I didn't study, I'm just going to marry. There is no need to, study. I just have to marry. But deep down, she was studying day and night. Right? So दिन रात पढ़ती रहती थी, सहेलियों को कहती थी भाई पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, ठीक है ना? So she got the scholarship and she went to Germany. She came back in 2024 and she has to use her data. So what she did, she again took that notebook in which she stored the cancer cells data. Now, what happened? She had stored data. She used that data again in her research. Right? Same thing we do in Python. We store our data in the form of variables in Python.
यार गाइस, जस्ट मुझे एक प्राइवेसी यहाँ लगाने दें. ओके, गुड. So now we have these variables in which we store data. One thing, another thing. If she has to, if so, Shabana's professor asked her, please, can you just tell me the proteins that were produced in the cancer cells in research that you completed in 2021? What she will do? She will open her notebook. She will directly look at protein heading or tag. She will enlist all the proteins which are written under the section of protein. Means that she just have to print or call the proteins which she did. So now you can see on the screen. Now go back to the computer screen. Guys, look at the computer screen. The line that is written here, a variable is a name that points to the piece of data stored in your computer's memory. Think of a gene. A gene is a named region of DNA that codes for a specific protein. The name BRCA1 does not contain the protein. It's a label that tells the cell where to look to find the instructions. Now you have to understand this line. The name BRCA1 does not contain the protein. It's a label. So basically, whenever we are writing the name of genes, we are telling computer that it's a gene, that is a marker. Yes, exactly. That is a marker that tells us which protein it can produce, not the protein that is available over there. It's a label that tells the cell where to look to find the instruction. So whenever we have to find something in Python, we just call or we just type or we just print the tag, and when we print the tag, we get all the information. Now stop here and let's move back to our Google Colab screen. Guys, let's move there. Allahu Akbar. दोस्तों, समझ आ रही है? किसी को कोई कहीं नहीं समझ आ रही, किसी को लग रहा है कि कोई पॉइंट मिस है, वो चीज को नहीं समझ पाया, तो प्लीज मुझे बताए. Anyone who felt that he is not able to understand and could not grasp the concept, so please do let me know. Or any place where you're feeling, you can tell me in the chat box, sir नहीं समझ आई लास्ट बात की. तमन्ना, मैं आपको अभी समझा देता हूँ. जस्ट स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस्ड, राइट? ओके, अब ये बात ना मैं उर्दू में बता दूंगा. गाइस, आई विल से दिस लाइन इन बायलैंग्वेज, इन उर्दू एंड इंग्लिश, बिकॉज सम वन ऑफ आवर स्टूडेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट. So look at my screen, type with me. Suppose that BRCA1 is a protein, is a DNA which makes protein. The name of protein is collagen, right? And BRCA2 is a gene which makes protein whose name is keratin, right? And BRCA3 is a gene whose function is to make protein whose name is, can you tell me the name of any protein? Currently, I'm not able to. Globular protein, right? That makes globular protein. So these are the three genes which makes three types of proteins. What we did, we saved information by giving tag to each protein. We gave tag to each protein. We give tag to each protein. Now we have saved this information in a memory in our computer. So we go to our lab and our professor asks us, can you tell me which protein we got, what protein we had that makes the hair structure? Now you quickly call that protein is a keratin protein, and I stored it with the tag of BRCA2.
What you will do quickly, you will write here print, you will call the name of protein, that is BRCA2, and then you will hit control plus enter, and in output you will get your keratin protein, right? समझ आइए आपको यहाँ पे? बेसिकली मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि जब भी हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक टैग या फिर स्पेसिफिक हेडिंग दे के स्टोर करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो जब भी हम लोग उस इंफॉर्मेशन को कॉल करेंगे या फिर अपने प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे, उसकी कमांड को यूज करेंगे आउटपुट लेने के लिए, तो क्या होगा, वही स्पेसिफिक प्रोटीन जो है या फिर वही स्पेसिफिक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों ने स्टोर की थी अपने कंप्यूटर की मेमोरी में, वो आउटपुट की फॉर्म में हमें स्क्रीन पे नजर आएगी। ठीक है? और जो इंफॉर्मेशन हम सेव करते हैं अपने कंप्यूटर में, एक टैग लगा के उस इंफॉर्मेशन को वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है? कंप्यूटर पाइथन में हम जितनी भी अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसको सेव करते हैं, वो सारी की सारी वेरिएबल्स की फॉर्म में होती है। अब इनको वेरिएबल्स क्यों कहा जाता है? व्हाई डू वी कॉल दिस इंफॉर्मेशन वेरिएबल? एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, we make a tag of BRCA1, we give it collagen protein, right? We made a tag to BRCA2, we stored inside it keratin protein, right? We have a tag that is BRCA3, we stored inside globular protein. So what we did, we stored variations, we stored information that is different from each other, right? We have variables, we have variation in information. So variables are the statements or the memory, or we can say pieces of information that is different or cannot be different from each other, which we store inside of our computer memory, राइट? जैसा कि हम लोग डिफरेंट तरह के इंफॉर्मेशन, डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स को एक पेज पे लिखते हैं। ठीक है? तो उन सब में एक वेरिएशन आती है, तो हम कहते हैं ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लिखना होता है जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होती है, तो इसलिए हम इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक नाम देते हैं जिसको हम वेरिएबल कहा जाता है। और बायोलॉजी में वी कैन से दैट दीज आर द नेमिंग बॉक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन पाइथन लैंग्वेज, राइट? गाइस समझ आई कि नहीं? देखो ऐसे मुझे डर लगना शुरू हो जाता है कि पता नहीं मैं एलियंस की बातें करना शुरू हो गया हूँ। सो लेट मी जस्ट अनम्यूट सम ऑफ यू। डिड यू अंडरस्टैंड? click on the pin, maximize, uh, ma'am, sorry I did not read your message. You can, just click on, you can just click on the pin button and it will be maximize. So guys, first of all, tell me, did you understand this or not? Did you grasp what I said, or still you are in a confusion? So anyone who wants to turn on the mic, anyone? Yes, doing great. Ehsan, thank you so much. किसी को कोई नहीं समझ आई, प्लीज जरा थोड़ा थम्स अप करके ना मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं सब लोग। थोड़ा रिपीट कर दें, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। किसी और का कोई सवाल हो? एनीवन? सैम्यूल, यू गॉट एनी क्वेश्चन? डेल, यू गो एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कुड नॉट गेट इट, सो प्लीज यू कैन आस्क मी। बाकी सब कहाँ पे है? सामिया, सानिया, रमशा, आयशा, शबाना, अली शहजाद, उर्फ, उर्फ, अली शहजाद। गॉट इट गुरुजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो 1 मिनट की ब्रेक ले लें, क्योंकि ये लाइक कैन वी हैव जस्ट अ सिंगल मिनट ब्रेक, बिकॉज सर शबाना आपने बाल बनवाने गई है। ओहो, शबाना आपने बाल बनवाने गई है? महबूब आपको कैसे पता है? देखो ईद है,
शबाना, देखो गंजी शबाना है बट शी कैन डू, मेरा ख्याल है अगर शबाना गंजी है ना तो वो इस ईद पे ना मेहंदी लगवाएगी अपने सर पे, जहां तक मुझे लगता है। चलो ठीक है बगली। नेक्स्ट में हम लोग कैसा करेंगे, शबाना जो है, यस शबाना डिजर्व्स टू बी हैप्पी, शबाना डिजर्व्स टू बी हैप्पी। देखो यार, हम पढ़ते हैं, पढ़ाई के दौरान एक चीज कुछ कुछ, देखो पढ़ाई के साथ साथ ना देयर आर द सम मोरल लेसन्स दैट वी शुड यू नो। प्लीज जूम इन योर टर्मिनल, मिस्टर आमिर, you can press the pen button, it will be in a bigger screen. Ali Shazad, press the unmute button. I will give you the option because right now I'm not able. Host controls, just let me see. Okay, host control. Yes, you can. Someone can unmute. I have gave the information. Yes, महबूब, महबूब जो भी सवाल है प्लीज आपने माइक पे पूछना है। महबूब, turn on your mic and ask me the question, ताकि Audible? बाकी Tell बाकी me. सब। Yes, yes, we can hear you. So Mehboob is gonna ask a question. I feel like he has some sort of confusion, so all should know that. What's the सर question? आपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने Hmm? के लिए क्या? ब्रेसेस क्यों यूज किए? ये तो All टपल्स right. के लिए यूज नहीं होती। मैंने ब्रेसेस क्यों यूज किए हैं वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए, टपल्स के लिए यूज नहीं होती। अच्छा महबूब, थोड़ा सा अहेड आंसर है। आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप इसको भी सेव कर ले, क्योंकि ना हमारे साथ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं कि आई डोंट वांट कि थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो। मैं आपको इसको सेपरेटली आंसर कर दूं, इफ यू डोंट माइंड। ठीक है, अब हमने वेरिएबल, थैंक यू सो मच। सो ये बेसिकली नेमिंग कन्वेंशन रूल्स आगे आ रहे हैं। अगर हम उसको फ्लो में करते जाएंगे ना, सो इफ वी रीड एनीथिंग इन द फ्लो, सो वी विल बी एबल टू कनेक्ट द इंफॉर्मेशन टेक्निकली विद ईच अदर। So let's move to the next. So what you have to do, just guys focus on the screen which I am sharing. We have to focus on the book. Think like a biologist. Right now we have to think from the biological perspective. Variable was a gene name. Value that was stored in the variable, it was a protein that is encoded by that gene. What is the memory? Memory is basically the cell's genome. The whole genomic sequence was the memory of of the cell. When you write organism E. coli, you are saying in the memory store the text E. coli and call that location an organism. On the left side, we we write tag. So basically, that tag is a location, right? That tag is a location, or we can say the place where we store information, wherever we write our information. On the right side, whatever we write, this all is the information that is being written under that specific tag. Miss Yasmin, I answer you. ये अगले ही क्या कहते हैं उसको पॉइंट पे मैं आंसर करने वाला हूं कि हमें कहाँ अपर केस यूज करना है, कहाँ लोअर केस यूज करना है, राइट? सो गाइस, लुक एट द स्क्रीन. Later, whenever Python sees the word organism, it knows to go fetch that stored value. So basically, whatever we write on our left side, this all is the location or the place where we store our information. It's just same as you have two notebooks, notebook 1 and notebook 2. You wrote about proteins that you extracted from cancer cells in notebook 1. You write the receptor cells names in notebook 2 that you got from the same cancer cells on which you were working. Now you know in which proteins are stored, in which receptors are stored. So whenever your professor or someone says that, can you please tell me where the receptor is? You will directly go to notebook number 2 because you know that this is a position, this is the location where you can find your receptor cells. Same happens to the computer. Whenever you call your tag or your variable, it directly goes to the position or a place where the information is stored and it shows you on the screen.
राइट? दोस्तों समझ आई कि नहीं? देखो यार, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम लोग कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, और हमें पता होता है कि हर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की एक जगह होती है, एक लोकेशन होती है, ठीक है? जैसे कॉपी लोकेशन है। सेम इसी तरह कंप्यूटर में जब भी हम कोई अपना वेरिएबल लिखते हैं तो बेसिकली कंप्यूटर को नहीं पता कि वो वेरिएबल क्या है, ठीक है? पाइथन को बिल्कुल नहीं पता कि वो प्रोटीन का नाम है क्या नहीं है। उस वेरिएबल को वो बिल्कुल बस यही समझेगा कि ये एक स्पेसिफिक जगह है, यहाँ पे उसने ये प्लॉट एलोकेट कर दिया है इस इंफॉर्मेशन को। जब भी मालिक मकान आएगा, उसको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो इस प्लॉट के ऊपर प्रेस करेगा, उस प्लॉट का नाम लिखेगा और वो इंफॉर्मेशन उसके सामने आ जाएगी। ठीक है, मुझे बताओ यहां तक समझ आई? Yes, we can say that we assign a specific memory location to specific tag. That is the reason Python is very precise and specific whenever we print the function. These are the things that you will understand when we will move to our practical, practical side of it. So once we start, writing the code, you will grab all the concepts. ये basics के ऊपर मैं इतना इसलिए खप रहा हूँ ताकि आप लोगों को whenever, why I'm trying to put so much effort on these basics, because whenever you start learning or writing the code, all the basics will be cleared and you will be directly writing the code continuously without any fear that what's next, what I am writing, what's the meaning of that. Ali Shehzad, please सवाल पूछें लेकिन माइक पे पूछें। का भाई बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है मेरा कि जी जी। वेरिएबल वेरिएबल और वैल्यू में क्या डिफरेंस होगा? अच्छा, वेरिएबल में और वैल्यू में क्या डिफरेंस होगा? देखो, जो वेरिएबल है ना, वो पूरी की पूरी वो लाइन है, वो लाइन ऑफ, देखो ये देखो, आप सॉरी, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा वेरिएबल है, राइट? this whole is a variable, right? Organism equal to E. coli, this all is a variable because it's a complete information, and the information that we stored in this section, it's a value that is assigned to this variable. Every tag in Python is a variable. Every information that is written under the specific tag is the value that we assign to specific variable. जो इंफॉर्मेशन हम वेरिएबल को देते हैं वो बेसिकली वैल्यू होती है। वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट कंटेन्स एनीथिंग। वैल्यू इज बेसिकली whatever we store inside of the container is the value. बुरहान, आई विल रियली अप्रिशिएट अगर प्लीज अगर आप इस बात को माइक्रोफोन पे आके कह दो ताकि सबको समझ आ जाए। आपने बहुत अच्छे से लिखा भी है, तो प्लीज इफ इट्स पॉसिबल प्लीज टर्न ऑन योर माइक्रोफोन इफ इट्स फिजिबल एंड पॉसिबल, and do explain this. Samuel and Del, I hope so you are. हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। अच्छा यार, जो वैल्यू वेरिएबल में डिफरेंस है ना वो बड़ा क्लियर है कि वेरिएबल जो है वो इज़ लाइक अ कंटेनमेंट या इज़ लाइक अ जार, और वैल्यू जो है ना वो वाटर है, लाइक अ जार कंटेनिंग वाटर। तो वेरिएबल विद वैल्यू कैन मेक अ कंप्लीट सेंस। एग्जैक्टली। सो समझ आई कि नहीं दोस्तों? कॉन्सेप्ट क्लियर है? uh, भाई बाकी जो लोग भी हैं, मिस यास्मीन, इज इट क्लियर टू यू? मिस्टर आमिर, जवाद, तमन्ना, समाया, सैम्यूल, सादिया, डेल, सुमायरा, सानिया, नसीर, ऑल द पीपल हु आर सिटिंग इन द क्लास। मैं सबके नाम ले लेके बोल रहा हूँ, जैसे वो एक समटाइम्स हमारे कुछ प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो दूर से बैठ के बता रहे होते हैं, तो जी जी जी, शुजात साहब आप सामने आ जाएं। आप में से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कौन कौन पढ़ा हुआ है? एनीवन हु इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद? एनीवन? आई गेस नो वन इज हियर। No one is from University of Agriculture Fest. Jawad is from University of Agriculture Faisalabad. Okay, Jawad is from DVM department. Jawad, what about microbiology department and Dr. Mashkoor Mohsen Gilani? He's a gem. He's a gem. So guys, let's move next. Dr. Amir Aslam. Dr. Amir Aslam is a cool guy. कुछ भी हो जाए सर कहते हैं कोई मसला नहीं. He is one of the coolest guy we ever have. So now what we have to do, look at this. So at the day one variable in the biology, organism E. coli was a variable. We have, so here we wrote our code, and now in hashtags
बेसिकली these hashtags क्या कहते हैं यार, इनको मुझे भूल गया है, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा. Comments. So basically in the comment section we are writing the literal meaning of this variable. Organism is the variable name. E. coli is the value that is stored in that specific variable. The equal sign is the assignment operator. It means that store this I'm value sorry, under this. sir. Can you tell me the page number जहाँ से आप पढ़ रहे हैं? मैडम आप पेज नंबर 9 पे आ जाएं प्लीज. Madam, it's a page number 9. My screen is not visible to anyone. पेज Guys, वाली स्क्रीन नहीं दिख रही. आपने पेज वाली से आप अपनी जो स्क्रीन है उनको थोड़ा स्क्रॉल करें और पेज वाली स्क्रीन को ना पिन कर ले. जरा मुझे थोड़ा इसको जरा ढूंढने दें, कहाँ चली गई है ये. ओके, पार्टिसिपेंट्स, हाउ डू वी मेक पेज स्क्रीन. वी गोटा मेक दिस हाईलाइट. मिल गई ये पेज वाली स्क्रीन. चलिए कोई बात नहीं, मैं देख लेते हैं. नो So, सर, पेज वाली ऐसा स्क्रीन नहीं मिली. चलिए आप ऐसा करें, आप इसको अपनी ना किसी नोटबुक पे, अपने फोन पे या लैपटॉप पे सर ओपन कर मेरे लें पास प्लीज. ओपन है आईपैड पे ही, लेकिन मुझे आप हेडिंग बता दें. यहाँ पे पेज 9 पे सेक्शन 1 व्हाट इज प्रोग्रामिंग रियली ये शो हो रहा है. पेज नंबर 9 पे आपने आना है वेरिएबल्स, और वेरिएबल से नीचे ना एक ब्लू कलर का बॉक्स है जहाँ लिखा है लेट्स क्रिएट योर फर्स्ट वेरिएबल. हेडिंग नेम है वेरिएबल. जी जी, पेज नंबर 9 है. दोस्तों पेज नंबर 9 ही है ना. हाँ, पेज नंबर 9 ही है, ब्लू कलर के बॉक्स में. सो एवरीवन, लेट्स मूव बैक टू आवर कोलैब. सो Khan, it's page number 19, not 9. आई एम सो सॉरी, प्लीज. मेरी ना दो स्क्रीन ऑन है और शेयरिंग पे लगी हुई है. यहाँ मुझे पेज नंबर 9 ही लिखा नजर आ रहा था. माजरत माजरत प्लीज. थैंक यू सो मच जिसने भी करेक्शन करवाई है. जजाकल्ला. यार ठहरो, जस्ट लेट मी मेक दिस स्क्रीन एनोटेट. मैडम मिल गया है आपको पेज? यस सर, मिल गए. चलो बहुत शुक्र अल्लाह का. ओके, लेट्स मूव टू where is my screen. Okay, so now let's move to our Google Colab screen. Everyone please come to the Google Colab screen. Anyone, is my Google Colab screen is visible to all of you? दोस्तों Google Colab वाली स्क्रीन नजर आ रही है guys? My Google Colab screen is visible? Yes, sir, visible. All right. So whatever is written in the book, we have to do over here. First of all, let's type this organism. That is equal to, we have to put commas. We have to write E dot coli, right? Just make our first variable, that is organism. So how we created this variable? First of all, we wrote our tag name, that was organism. Then we placed an equal sign. So basically this equal sign is an operator. It's a function, just same as the print. So equal sign, whenever we write equal sign, our computer gets a command that whatever is written in front of that equal sign should be connected with the variable, should be connected with the tag that is being written on the left side. So you know the connection that is being built between the left and right side is through that equal sign. So the equal sign is a function, it's an operator whose function, it's a command whose function is to connect both values with each other, right? So now after writing the code, press hashtag
and now we have to explain our code into comments. Anything that we write by applying hashtag is called as comment. This is same equal to, just look at my paper screen if this is visible to you. This is my paper screen. Do you remember whenever we used to solve our mathematic question, that part used to be our area where we used to solve our question. 2 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 is equal to 4, and that was the area where we used to write what we did. So like 2 multiplied by 2 is equal to 4, that's understood. But someone who is very new to mathematics, what we do, we write here, that is when we multiply 2 into 2, it gives us answer that is 4. So basically what we did, whatever we performed, we wrote very next to that. This section will not have any effect on that section, but this section will create an impact when someone who is very new to mathematics is going to read this, and he will directly understand what happened over here. So that is a technique that we use whenever we are, solving some complex physics formulas. If you remember your first year, second year class where we used to solve the gravity formula, MD cat ke dukhade sare bacche hain. So that is the same thing that we do in Python whenever we write our comment, whenever we have to write down whatever the process that we are doing here. What we do, we use this hashtag function. So we are creating our first variable, that is organism name, right? Hit enter and move to the next line. Then again push hashtag and write. To make this variable, we have to write two things. One is the tag, that is the name of variable, and other one is the information that we store inside of variable. So there is a convention or rule whenever we have to write our variable in form of text, always write that variable in between the commas. We can use double comma, and we can even use, oh man, shit, I have hit the enter button. And we can even use single commas to connect both of the variables. We use that equal function or that equal button or this equal sign, that is actually the operator, that is actually assignment operator, whose duty is to assign that value to the specific tag. So the duty of that equal button is to assign the value to our variable, or we can say tag. That is why we call it, oh man, we call it assignment variable. Guys, did you type this with me and did you understand what I said? प्लीज जरा मुझे बताइएगा, समझ आई? Guys, did you understand? दोस्तों जरा थम्स अप करके बता दो प्लीज, आप लोग कोड टाइप कर रहे हो कि नहीं कर रहे? बुक 9 इज नहीं समझ आ रही। मैं मिस यास्मीन, मैं आपको समझा देता हूँ। किसी और को नहीं समझ आ रही, प्लीज मुझे बताइएगा। तमन्ना को नहीं समझ आई, किसी को नहीं समझ आई, जरा थोड़ा थम्स अप करते।
यानी किसी को नहीं समझ आई। चले अब मैं आपको उर्दू में समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो, हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल का नाम था ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया। अब हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम देते हैं ऑर्गेनिज्म नंबर 1, और हमने उसमें एक इंफॉर्मेशन को स्टोर किया, यानी कि हमने उसको एक वैल्यू दी और हमने उसमें नाम लिखा स्टेफाइलो स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है ना, बड़ा खतरनाक होता है, एक्नी कॉज करता है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने ये कोड लिख दिया, हमने ये इंफॉर्मेशन लिख दी, लेकिन किसी और बंदे ने अगर पढ़ना हो, समझना हो कि भाई इसने क्या लिखा है, कोई नूब है उसको नहीं पता, तो हम ना जनरल टेक्स्ट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिख देते हैं जिसका कोड से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो कभी भी कोडिंग में नहीं आती। जब भी हम पाइथन रन करते हैं तो पाइथन को नहीं, पाइथन उसको एज अ कोड परसीव नहीं करता, उसको वो कहीं मेमोरी में स्टोर नहीं करता। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हैशटैग यूज करते हैं, और उस हैशटैग के आगे ना जनरली फिर वो इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखते हैं। हम लिखते हैं कि इंफॉर्मेशन लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं कि जी हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसका नाम है ऑर्गेनिज्म 1, और उसमें जिस ऑर्गेनिज्म का नाम स्टोर है वो है स्टैफ ऑरियस। ठीक हो गया, वो स्टैफ ऑरियस है। अच्छा, अब अब जो हम लोग यहाँ पे इक्वल का साइन यूज करते हैं ना बेसिकली, अब ये जो इक्वल का साइन है ना, इसको हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। अब शबाना को ना समझ नहीं आ रही थी कि ना ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, तो शबाना जाती है शकीला के पास। तो शकीला उसको कहती है कि देख बहन, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, इसका ना काम ये होता है कि जैसे कि कौन सी एग्जांपल मैं आपको दूं। हाँ, तो शकीला कहती है कि जैसे हम कहते हैं ना कि सुर्ख जोड़े पे गोल्डन गोटा किनारी अच्छी लगेगी, तो शकीला ने क्या किया, सुर्ख जोड़े के साथ गोल्डन गोटा किनारी को, ओ मैन, उसने क्या किया, गोल्डन गोटा किनारी को सुर्ख जोड़े के साथ असाइन कर दिया। उसने कह दिया कि यार आइंदा से सुर्ख जोड़ा हो तो गोल्डन गोटा किनारी लगेगी। ठीक हो गया। तो अब जो शबाना है वो कहती है तू आई बड़ी कहीं असाइनमेंट ऑपरेटर, इतनी रूल्स बनाने वाली। ठीक हो गया। तो वो कहती नहीं नहीं शबाना, मैं पाइथन में बात कर रही हूं। ठीक हो गया। तो बेसिकली हमारा जो इक्वल साइन है, जैसे प्रिंट एक हमारे पास कमांड थी जिसका फंक्शन था आउटपुट जनरेट करना, इसी तरह जो इक्वल का साइन है, इसका फंक्शन है कि जो हमारा वेरिएबल का टैग होता है उसमें जो भी हम वैल्यू लिखते हैं उसको स्टोर करना। समझ आई? इसीलिए हम इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ये वैल्यूज एक दूसरे को असाइन करता है। डिड यू गेट अ कॉन्सेप्ट? समझ आई कि नहीं दोस्तों? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? समझ आ गई? शुक्र है यार, शुक्र है। देखो ईद है, सूटों की मिसालें दे दे, बात समझ आनी पड़ रही है लेकिन अच्छी बात है, वी हैव टू स्टे रिलेटेबल। ठीक है। तो देखो, अब गज्जी शबाना जो इस दफा ईद पे गरारा पहनती है, शरारा पहनती है, वी हैव नो आइडिया, लेकिन शी हैज द आइडिया अबाउट व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। सो मैम यास्मीन, आपको समझ आई? महबूब, गाइस प्लीज थोड़ा सा जरा थम्स अप कर दें, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है मुझसे पूछ लें। गाइस अ बिट थम्स अप इज नीडेड। थोड़ा सा भाई, मैं थोड़ा ना, मुझे लग रहा है कि आप सब लोग ना जरा थक गए हैं, कुछ आ तो गई है। मिस यास्मीन कोई मसला नहीं है, इसको दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, मैं आगे प्रैक्टिस करवाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। जस्ट डोंट बी वरीड, नहीं भी समझ आई जस्ट रिलैक्स रहे। ठीक है। नाउ लुक एट द बुक स्क्रीन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगेन we have to use our print function to print that organism, right? So look at this.
When we typed the print function and applied these brackets and typed organism, we have two options: organism 1, organism 2. This is what I was saying. Your computer stores the values. So your computer stored the variable organism and all the information that is, written inside of that variable. So if we have to print or call out any information, we have to take output. We will choose among them and we will hit the enter button, and then we will have the output. So already this information was stored in these variables, and now we can call this, we can print it out. Again, we stored the value of, do you remember BRCA? It's still stored. So we have to, again, in the next section, we have to, call out our, we have to take the output of that value. What we will do, we will use the print function. We will type the variable name, and then we will hit the enter button, and look at this. Our computer has information that was stored inside of it. So guys, यहाँ तक समझ आई कि नहीं? दोस्तों समझ आई कि नहीं? समझ आ गई है? Still anyone having any confusion? Guys, Samuel, Dell, all the international students, you understood the concept or not? Yes, yes. Yes, you have understood. So do we need to move forward? Of course, sir. Right, we need to move forward. Let's move. Let's move. May I have the break of single minute? You know. Okay, so let's read next. Notice that the equal sign in Python does not mean these two things are equal the way it does in mathematics. It means assign the right side to the left side, read it as an arrow. Equal I is assigned to organism. The value flows from right to left into the variable. Variables can change. Hence, the name means that we can change the variable. We have to store the information of temperature. We will create the variable named as temperature. Means that this information is stored under this section, body temperature in Celsius. These are the commands to explain whatever we did this. So guys, do an exercise, type all the stuff that is written over here, create 10 variables and show me. I'm waiting. Create 10 variables. Everyone, please go on your Colab screen, create 10 variables and show me. जरा थम्स अप करे, थोड़ा सा मुझे पता चले कि भाई कहाँ तक मौजूद हैं हम, कहाँ तक पहुँचे हैं हम. Guys, are you writing this? Please just put the thumbs up so that I should know that you're writing, you're creating the variables.
सर 3 क्वेश्चन है, हम गूगल कोलैब में फोल्डर और फाइल कैसे बनाते हैं, और क्या इसमें वीएस कोड की तरह कोडिंग स्टोर हो जाती है, और हम वीएस कोड को यूज़ क्यों नहीं कर रहे। मिस सानिया अभी आपको इसका आंसर कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। गुड जॉब अबू बकर, छा गए हो। बुरहान था, अबू बकर था। गुड जॉब। बाकी सब भी प्लीज जरा वेरिएबल्स लिखें, स्टोर करें, टाइप करें। महबूब, गुड जॉब डूड, गुड जॉब। Samuel, Dell, guys, to participate. So we have गाइस, मुझे लगता है आप लोग कर चुके हो, प्लीज थोड़ा ज़रा थम्स अप करें। टाइप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा, इसके साथ साथ ना आपने अब इन सबको प्रिंट भी करना है, ठीक है। अब प्रिंट करना स्टार्ट कर दें, इन सबको प्रिंट करें, ज़रा इनसे आउटपुट जनरेट करें। गाइस, कहाँ तक पहुंचे। सब लोग प्रिंट कर रहे हैं कि नहीं। ऑल राइट, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। मैं 1 बाय 1 खोल रहा हूँ। ऑल राइट, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। नाइस, नाइस मैन, नाइस, दैट्स ग्रेट। ठीक है, मीन्स दैट आप लोगों को वेरिएबल लिखना आ गया है, एंड यू हैव अ वेरी फर्म ग्रिप ऑन दिस, ठीक है। अच्छा, ओके, अब है हमारे पास रूल्स फॉर नेमिंग दीज वेरिएबल्स। यार मुझे ये बताओ। यस, गुड जॉब डेल, गुड जॉब। बट डेल, you have to do one thing. There is no need to write, there is no need to put parenthesis behind the value, just around the values, and make sure to put the equal sign in front of protein and antibody. Okay, fine. Yes, Thank you. yes. So guys, what do you say that rules for naming variable कल ना पढ़ लें।
क्या कहते हो? सर इसको आज ही कर लेते हैं, ये टॉपिक आज क्लोज करते हैं वेरिएबल्स वाला। ठीक है यार, आपने कह दिया आज वेरिएबल्स क्लोज। अच्छा, वेरिएबल्स में यार रूल्स पढ़े हैं। चलो ठीक है, वेरिएबल्स के रूल्स हम पढ़ते हैं और फिर कल डेटा टाइप से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है डूड यार, अच्छा किया महबूब, अच्छा किया आपने बता दिया। भाई गुड हो गया दोस्तों, गुड हो गया। चलो जब आप लोग एक दफ़ा कंप्लीट कर लो ना टाइपिंग, फिर मुझे बताना, फिर हम रूल्स पढ़ के इसको आज हम लोग यहाँ क्लोज करेंगे वेरिएबल के टॉपिक को। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस तरह से आप लोगों को समझ आ रही होती है ना, मैं बुक भी देखो लाइन बाय लाइन रीड करना, आप सब लोग माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब लोग मुझसे ज़्यादा समझता आ रहे हैं माशाल्लाह, आप सब लोग मुझसे ज़्यादा चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ के बताने का एक मकसद होता है कि चीज़ों ना बहुत सारी होती हैं कि जैसे मेरी एक आदत है, मैं ना चीज़ों को हमेशा इंटरकनेक्ट करके चलता हूँ कि कौन सा पॉइंट कहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि देखो लफ्ज़ों के मीनिंग को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स रिटन इन द लाइन्स। So that's why I try to focus on on a triangle, hands-on training by typing the code, by using paper to connect the concepts, and to read the lines, to read the book, just to keep the knowledge updated, fresh, and something that the mind should be in a triangle whenever we are learning to sustain or retain the focus, because we have no idea on which point we are going to understand this, right? So that is the only reason. तो बताओ ये वाला मेथड ठीक है ना, या फिर बुक आप खुद पढ़ लिया करेंगे? दोस्तों कुछ बताओ भी। सर मैंने ट्राई किया, मेरा एरर शो हो रहा है जब क्या मैं एरर शो हो रहा है, रन दिखाओ कर जरा, रही हूँ। दिखाएं आप ना। दोस्तों कौन बंदा करेक्ट करेगा तमन्ना का एरर? तमन्ना प्लीज आप दिखाइए। महबूब, ठीक है महबूब इसको करेक्ट, तमन्ना प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर करना। अल्लाह अकबर। अच्छा मैं सिर्फ 2 मिनट में पानी पी के आया, द जग इज़ नॉट विद मी। तब तक तमन्ना आप इनको स्क्रीन शेयर करें, और एनीवन, महबूब ने रे हैंड रेस किया था, और कोई भी जो है इस एरर की करेक्शन कर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी बैक। तमन्ना हैज स्टार्टेड, गाइस, इफ यू कैन सी द तमन्ना स्क्रीन, जस्ट दिस इज माय स्क्रीन। हाँ, ये जो आपने वेरिएबल लिखा है जो हाईलाइट है डीएनए सीक्वेंस, ये ना आपने रॉन्ग लिखा है, इसमें आप स्पेस नहीं ऐड कर सकती। और जो आपने इसको वैल्यू असाइन की है वो भी गलत है। उसको आप डबल कोट्स में लिखेंगी। और जो आप प्रिंट कर रही हैं टेम्परेचर, ये आप बेसिकली वैल्यू नहीं प्रिंट कर रही, ये आप एज इट इज टेक्स्ट प्रिंट कर रही हैं। अगर आपने वेरिएबल प्रिंट करवाना है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो उसको कोट्स में नहीं लिखें, उसका नाम लिख दें। इज इट क्लियर? या, राइट। बेसिकली नीचे वाला आपका वेरिएबल भी गलत है, डीएनए सीक्वेंस वाला, उसमें से स्पेस खत्म करें। डीएनए सीक्वेंस नीचे है इसके। ओके, नाउ रन इट। या, इट्स रनिंग। करेक्शन किसने करवाई है? सर महबूब। हाँ अच्छा महबूब, आप थोड़ा सा ये भी बता दो कि मिस मिस यास्मीन ने बताया है कि सिंटेक्स एरर है। महबूब प्लीज़ अब आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो, तमन्ना को एक्सप्लेन करो कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन के यहाँ कॉमाज लगाने हैं, यहाँ कॉमाज नहीं लगाने। सर अगर आपने प्रिंट के अंदर कोई टेक्स्ट एज इट इज प्रिंट आउटपुट लेना है, तो वो आप कोट्स के अंदर लिखते हैं, वो एज स्ट्रिंग उसको शो करवा देगा। लेकिन अगर आपने हम्म, वेरिएबल प्रिंट करवाना है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो आपको एग्जैक्ट वेरिएबल का नाम देना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा चलो यहाँ ना एक स्टेप हम पीछे चलते हैं, महबूब ने जो आपको रूल बताया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो वन स्टेप अहेड है। अब जब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, वहाँ पे तमन्ना प्लीज़ आपका मुझे फोकस दरकार है, और हर उस बंदे का जिसको यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यार आखिर तमन्ना ने जो किया वहाँ पे गलती क्यों आई, सिंटेक्स में क्या गलती थी,
मिस यास्मीन का भी एक मसला आ रहा है। महबूब जरा देखिए मिस यास्मीन का क्या मसला आ रहा है। मिस यास्मीन, अभी मैं आपको जो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल पढ़ाने लगा हूँ, प्लीज़ आपने ज़रा यहाँ गौर से देखना है, और इंशाल्लाह अज़ीज़ दैट विल बी सर, रिजॉल्व। यास्मीन ने वेरिएबल का नेम गलत लिखा है। जब हम ये रूल्स पढ़ेंगे तो इनका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यस, चलो। वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, can contain letter, numbers, and underscores, cannot contain space, and case sensitive. So DNA, which is written in uppercase, will be different from DNA that is written in small, in lowercase. So whenever we are writing our variable name, make sure that it's a case sensitive. Anything that is written in uppercase will be considered as different variable compared to something that is written in lowercase. By convention, Python programmers use lowercase with underscores for variable names. So मिस यास्मीन, आपने पहला रूल जो है उसको ब्रेक किया है कि देयर शुड बी नो स्पेस। आपने देखें वहां स्पेस दी हुई है, आपको अंडरस्कोर के साथ उस वेरिएबल को लिखना है। Look at this. Person wanted to write DNA sequence, but he had to maintain a space. What he did, he used underscore. He had to write cell count, but as per the naming convention, there is no need to, we cannot put space over here. So what we did, we placed underscore. Same happened with the species. Second thing, whenever we have to make a string or whenever we have to write some sort of text, always remember we have to put quotes. We have to keep that string in between the quotes. Whenever we have to write any digit, it will never have quotes around it, right? Look at this. Bad variable names will cause error or confusion. We cannot start any variable with number. We cannot write any variable with space. Class is the reserved Python keyword. So never ever assign any variable by using that class name, right? So these are some conventions or some rules to write. I will share some other rules as well. बट आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसके साथ एक और मेजर टॉपिक है जो मुझे आपको कनेक्ट करके पढ़ाना है। ठीक है, तो जब भी आपने वेरिएबल्स के नाम लिखने हैं तो हमेशा आपने उनके दरमियान स्पेस नहीं डालनी, आपने अंडरस्कोर यूज़ करना है। जब भी आपने डिजिट्स लिखने हैं तो उनको कभी भी कॉमास में नहीं लिखना। जो आप टेक्स्ट लिखते हैं और उसके इर्द गिर्द कॉमा होते हैं तो पाइथन की लैंग्वेज में इसको स्ट्रिंग कहा जाता है। ठीक है, और कभी भी आपने वेरिएबल का नाम जो है किसी भी नंबर से नहीं शुरू करना। ठीक है, और कभी भी आपने वर्ड जो है क्लास, इसको नहीं यूज करना पाइथन में एक वेरिएबल बनाने के लिए। मिस यास्मीन न्याजी, आपकी मिस्टेक ये है कि आपने जो कॉमन नेम लिखा है ना, इसमें आपने क्या किया, स्पेस लगा दिया। अगर आप इसी कॉमन नेम को के दरमियान आप अंडरस्कोर लगा दें इसको कनेक्ट करने के लिए तो ये ठीक हो जाएगा, राइट? तो जब भी हम लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, जब भी हम लोग कन्वेंशन या रूल को ब्रेक करते हैं तो उसको सिंटेक्स आवाज एरर कहा कट जाता गया। है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हाँ जी, अब दोबारा ये मैंने कट दी थी। हेलो, आवाज आ रही है? अभी ये आ रही है फुकान भाई। अच्छा मिस यास्मीन, अब आ रही है आवाज? जी अभी आ रही है, पहले आप जी बता रहे थे। जी। अच्छा मिस यास्मीन, जब भी हम लोग कोई भी वेरिएबल्स लिखते हैं, ठीक है, और उन वेरिएबल्स में हम, जैसे आपकी मिस्टेक ये है कि आपने एक वेरिएबल बनाया जो था कॉमन नेम, और उसके दरमियान आपने क्या किया, आपने वो अंडरस्कोर नहीं लगाया। ठीक है, और हमारे रूल के मुताबिक बुक में लिखा हुआ है कि जो वेरिएबल के नाम होते हैं उनमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर हमने स्पेस देनी है तो हम स्पेस की जगह वहां पे अंडरस्कोर यूज करते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस। तो डीएनए सीक्वेंस में स्पेस लगाने के लिए आपको अंडरस्कोर यूज करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, मतलब जहाँ मैंने कॉमन और नेम लिखा है उसके दरम्यान में अंडरस्कोर आपको यूज अंडरस्कोर करेंगे। लगा के उसको कनेक्ट करना था, उसको सेपरेट करना था, राइट?
ठीक है, ऑल ठीक है। राइट। और ऊपर जो मैंने नेक के आगे लिखा हुआ है बिहेवियर डिफ्यूजर, उसमें वो भी ठीक है, अंडरस्कोर लगाना है या उसमें स्पेस नो नहीं नहीं नहीं, कंसर्न? वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट में इंशाल्लाह ताला आपको ठीक है, कल तो करवाऊंगा। प्रिंट तो मैंने नेम, हाँ जी मैं ये कह रही थी कि मैंने प्रिंट तो मैंने नेम ही किया था ना, तो वो कॉमन नेम वाला नहीं 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 नहीं, प्रिंट अब आप नहीं, ये वाला था पहला वाला। देखें, अब जो आपने ये पूरा का पूरा सेक्शन लिखा है ना, ये एक पूरा का पूरा कोड कंसिडर हो रहा है, ठीक हो गया? तो दैट इज द रीजन कि वो यहाँ पे ना आपको एरर दे रहा है। और इसके अलावा मतलब एक दो जगह पे नेम आ रहा है ना, दो जगह पे नेम आ रहा है, हम्म, एक ऊपर वाली लाइन में और एक चौथी लाइन में, इस वजह ये से मैं भी आप ये मैं आपको ना ये लाइव प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। लुक एट दिस, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन यस। ठीक है, देखें, नेम इज इक्वल टू शबाना, राइट? ये हमने एक पहला वेरिएबल बनाया। फिर हमने दूसरा वेरिएबल बनाया कॉमन नेम इज इक्वल टू शकीला, ठीक है? अब हमने क्या किया, हमने कहा यार हमने ना यहाँ प्रिंट करना है किसको, नेम को। वो घूमता रहेगा, हमें आंसर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एज पर कन्वेंशन क्या किया हमारा, ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है ना, इसमें मिस्टेक है, ठीक है? वो पूरा का पूरा जो कोड है ना, वो पाइथन कह रहा है कि आपने कन्वेंशन नहीं फॉलो की, ठीक है? अब ये देखें, तो जब भी हम पूरा कोड लिखते हैं, अब एक चीज आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिएगा, ये बेसिकली कुछ बाद के कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास के टॉपिक्स हैं। अब सर देखिएगा, ये जो इक्वल टू है इसका मैटर नहीं करता, इसके बाद अगर हम स्पेस दें या ना दें? नहीं इसका मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता, ठीक है? ओके। गूगल कोलैब का थोड़ा सा मसला है, कोड इज ऑलरेडी रनिंग, ठीक है? अब ये देखें मैडम, बेसिकली जो हमारा ये कोड का सेल है ना, इसने पूरे को पूरे एज अ कोड कंसिडर करता है। तो जब भी वो प्रिंट का हम फंक्शन दबाते हैं ना, तो ये पूरे के पूरे कोड को प्रोसेस करता है, ये देखता है कि क्या हर लाइन जो है वो ठीक तरह से लिखी गई है, नहीं। यही खूबसूरती है हमारी पाइथन की, इसी वजह से हमारे जो जितनी भी रिसर्च है वो प्रिसाइज होती है, क्योंकि देखिए छोटी से छोटी मिस्टेक को उसने पकड़ लिया। अब हमने यहाँ करेक्शन की, करेक्शन के बाद हमने यहाँ प्रिंट किया किसको, कॉमन नेम को, वो आ गया, ठीक है? मैम समझ आ गई? नेम को हाँ। ये देखें, नेम को हम प्रिंट कर लेते हैं, ये देखें, नेम हमारा प्रिंट हो गया। मैम गॉट इट? ऐसा नहीं करना, जिसकी वजह से हमने लिखना है सर। हाँ मैम समझ आई। हाँ सही है। सो किसी और का कोई सवाल, एनी कंफ्यूजन? सो गाइस, हम लोगों ने आज एक बेसिक जो है वेरिएबल और रूल्स फॉर वेरिएबल्स जो है इनको कवर कर लिया। वी हैव कवर्ड टिल नाउ। माय इंटरनेशनल कलीग्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क मी, डू आस्क, डूड। If you still have any problem or any confusion, just to ask me. So inshallah ताला we will continue from here tomorrow। भाई कुछ याद कर, हाँ हाँ ठीक है, अब्दुल मन्नान ने। सो गाइज, नाउ वी आर मूविंग टू डू समथिंग एल्स। हमारा आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म हो गया है, बट आई हैव टू एक बोनस चीज़ मैंने आपको बतानी है। सबसे पहले तो आज की स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट गाइज, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ऑफ टुडेज एक्सरसाइज व्हाट वी डिड, and make sure to, you know, upload this to your LinkedIn and make a caption over there that what we had, what we studied today. Make sure to mention me as well, right? I have taken the screenshot. All right,
So as you can see on my screen, I'm just gonna turn on my, just wait for a moment. Right. So today I have to teach you how to make a prompt to find that either you can, how you can use whatever you are learning to have your own startup, right? Or any business idea or something that is related to your research field, blah, 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 right? So my chat GPT is on and I hope so you guys can see my screen. Guys, look at this. So we have to give it a prompt. Abdul Manan basically wants to have his own startup. He wants to know that practically where he can use. Sania, मैं आपके सवाल का भी आंसर कर देता हूँ. It's my first lecture. Please let me know how many lectures I'm behind in class. मिस लीजा नूर, आप सिर्फ एक लेक्चर बिहाइंड है, वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है ऑलरेडी, और मैक्सिमम चीज़ें मैंने आज कवर करवाई थी, बट आप एक दफ़ा पहले वाले लेक्चर देख लीजिएगा. रमज़ान में हम लोग 10:30 बजे क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं तरावी की वजह से, बट इंशाल्लाह ताला आफ्टर द रमज़ान वी विल हैव आवर क्लास जस्ट आफ्टर द ईशा, और मे बी हम लोग इवनिंग में इसको कभी भी रख सकते हैं. सानिया, आपके सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा कि हम लोग जो है ये सारे के सारे फंक्शंस वीएस कोड में यूज़ कर सकते हैं. गूगल कोलैब जो है वो आपके डेटा को स्टोर करता है आपकी गूगल ड्राइव में, लेकिन आपकी ड्राइव में मोस्टली डेटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है. सो दैट इज़ द रीज़न कि बहुत दफ़ा जो है गूगल कोलैब उसको स्टोर नहीं कर पाता. राइट नाउ हम लोग क्या है, गूगल कोलैब को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे वी विल बी यूजिंग visual code to write our professional codes, because that is a place where we have our integrated environment, but still we have to use our Google Colab for just sake of, to cover up the basics. So just write, I am studying plant, look at this, biotechnology, and I am learning Python. First of all, you have to give it the role, or you have to give it your information. I'm studying plant biotechnology and I'm learning Python. Now I want to have my startup, which I can, which, how can I generate an idea that is market fit? I want to use Python and AI skills into this, right? अच्छा, उसके बाद आपने इसको बताना है कि make sure these ideas are humanly possible and problem solving, right? My audience will be professionals and farmers. अब आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ से आपने स्क्रीन पे खोलना है काउबॉय प्रॉम्प्ट, राइट? अब बेसिकली ये एक वेबसाइट है जो कि आपके प्रॉम्प्ट को ना बिल्कुल परफेक्ट कर देती है. अब आपने यहाँ प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है और यहाँ से आप लोगों ने एक मॉडल ठीक है. अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको प्रॉम्प्ट दे देना है, और ये प्रॉम्प्ट जो है ना उसको एक प्रोफेशनल वे में बना देगा. अब देखो यहाँ से आपका बन गया प्रॉम्प्ट, राइट? ये प्रॉम्प्ट आप पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको कॉपी में भी लिख के दे सकता हूँ. अब इसको आपने यहाँ पेस्ट करना है और आपने हिट कर देना है एंटर बटन. अब हमारे पास स्टार्टअप आइडियाज आ गए. AI प्लांट डिजीज डिटेक्शन फॉर अर्ली क्रॉप प्रोटेक्शन. देखो पूरा उसने आपको स्टार्टअप आइडिया बना दिया. प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन, एग्जांपल्स, फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं, मोबाइल AI डायग्नोस्टिक टूल आप बना सकते हैं, मार्केट फिट है ये, टेक्निकल फिजिबिलिटी है, दूसरा इरिगेशन ऑपरेशनल सिस्टम आ जाता है आपके पास, ठीक हो गया. AI सॉइल हेल्थ एनालाइजर आ जाता है, ठीक है. क्रॉप यील्ड प्रोटेक्शन AI आ जाती है. तो इस तरह आपके पास मल्टीपल आइडियाज आ जाएंगे. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू यूज योर your current skills to generate any idea that you can use to fit into the market. So समझ आई कि नहीं?
ठीक है, बस आगे समझ आता है फुरकान में। आगे समझ। बस ओके। में वो प्रॉम्प्ट वाला ही करना है, मतलब हाँ, एक बस काउबॉय कॉबा को प्रॉम्प्ट देना। आपने यूज करना है एंड यू विल एन आइडिया। सो गाइस, किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बताए और फिर मुझे इजाजत दी जाए। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? सर ये जो आपने रॉ प्रॉम्प्ट लिखा था वो जी काइंडली मैडम। शेयर कर दें या स्क्रीन पे ले आए, मैं उसकी पिक्चर ले लूँ। जी जी मैडम। शेयर स्क्रीन हो रही है। मैडम ये। नहीं, स्क्रीन शेयर हो रही है। आई मेंट टू से कि थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लें। ओके ओके ओके। ये वाला प्रॉम्प्ट मैडम। जी जी, यही ये मैडम फर्स्ट मैं वाला, आपको। फर्स्ट जो रॉ वाला था, बिल्कुल ओ रॉ। हो, वो वाला तो हाँ, अच्छा अच्छा, वो पड़ा हुआ है, ये पड़ा है। ये मैं आपको ना शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप में, बल्कि मैं यहाँ इसमें डाल देता हूँ। किधर है हमारा जूम भाईजान? अ, ये ले मैडम। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया मैडम। तमन्ना, आपका बैकग्राउंड क्या है एजुकेशन में? सर बीएस बायोटेक्नोलॉजी है, कहाँ से? एरिड एग्रीकल्चर, अरे आपका सेमेस्टर कौन सा है? लास्ट। Then you must be focused to Python and these prompts. It's really important. यस सर। It's really important. बाकी जितने भी लोग हैं जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, दे मस्ट बी वेरी फोकस्ड। एनीवन फ्रॉम नस्ट आई सॉ दैट कुछ लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए थे जो नस्ट से थे। सो वेल, इफ यू हैव एनी डू कनेक्ट विद मी। और स्टिल किसी का कोई सवाल हो, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? सो गाइस, आई होप सो आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। I am MSc in. Oh, nice to Dell. You're MSc in Cancer Immunology. That's really nice. That's really nice, dude. If you have any problem at any point, you just have to ask. All the network, all the people in the group, they are just welcome to answer you. They all are available there. Even me, you can ask me anything at any time. और बाकी सबके लिए भी यही है, किसी को कोई मसला आता है, कोई सवाल आता है, आप सबने पूछ लेना है, ठीक है? आप लोगों ने वो उसको खुद से नहीं, क्या कहते हैं, वो सोचते रहना, ठीक है? तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो रीडिंग करना मत भूलना, प्रैक्टिस करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेहत के लिए भी और मेमोरी के लिए भी। सो अल्लाह हाफ़िज़। अगर फिर किसी का कोई सवाल हो तो अभी मैं हाज़िर हूँ यहाँ पे, वरना मुझे इजाज़त दी जाए। तो बस एक चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखिएगा, रमज़ान है, अपने जितने भी हम वी ऑल आर कलीग्स, सो मेक श्योर टू रिमेंबर ईच अदर इन योर प्रेयर्स। सो मेक श्योर टू मेक दुआ फॉर एवरीवन। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी दोस्त अहबाब होते हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर एक हक रखते होते हैं, और वो हक होता है एक दूसरे की खैर खाही और दुआ का। बहुत कीमती लम्हात हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेज चल रहे हैं। तो मुझ समेत दुआ में याद रखना है। अपने अम्मी और अब्बू के लिए बहुत सारी दुआ मांगनी है, अपने बहन भाइयों के लिए बहुत सारी दुआ मांगनी है, ठीक है? डू रिमेंबर योर पेरेंट्स इन योर प्रेयर्स। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। योर पेरेंट्स is a direct way to your Jannah. So right now we are in a in a war zone. We have no idea, anything can happen at any time. So whatever we are studying, may Allah subhanahu wa ta'ala make it beneficial for all of us. May Allah subhanahu wa ta'ala make it practical and make it possible to create the way toward Jannah. हम जो भी पढ़ रहे हैं, बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला ना हमें इस काबिल कर दे कि हम इस जो भी हमारा टूटा फूटा इल्म है, इसके थ्रू अ, जो है वो अल्लाह हमारे इंसानियत की हम खिदमत करें, और अल्लाह ताला हमारे लिए जो है इसको बायसे रहमत, बायसे इज़्ज़त, बायसे बरकत बना दे। और एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अ, क्या कहते हैं उसको, जैसे हम लोग इस महीने में इबादत कर रहे हैं, हुकूकुल्लाह पूरे कर रहे हैं, तो इसी तरह हुकूकुल इबाद का भी हमने ख्याल रखना है, ठीक है? कोशिश करनी है कि हमने जो आखिरी 10 दिन रह गए हैं, प्रैक्टिस करनी है कि हम अपने बहन भाइयों को तंग ना करें, ज़ुबान
का जो, क्योंकि our tongue is something that could be very sweet, that could be harsh, so we have to keep our tongue very clean, and we have to use our tongue to create ease for others, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। बाकी गलती कोताही हम सबसे होती रहती है, हम सब गलतियाँ कोताहियाँ करते हैं। मैं कोई बहुत परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। हाँ, इसी तरह हम सब में कहीं न कहीं मिस्टेक्स होती हैं, तो किसी को जज नहीं करना, बस अपना रोल प्ले हमने करते जाना है। Will it be the same time for the whole week? Yes, still, inshallah ta'ala, it will be the same time for the whole week, because I have a Taraweeh prayer that ends at around Pakistani time zone 9:45. That is the reason I come back home around 10:15. So that's why we start a class around 10:30 or 10, sometimes at 11. So देखो यार, ये कुछ चीज़ें थी, रिमाइंडर थे। तो बाकी शरारतें खूब करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, ठीक है? शरारतें वो वाली करो जिससे तंग ना हो। और whatever you learn, whatever you do, make sure to post it on your LinkedIn, show the world what you are doing, whatever your expertise are, ठीक है? इवन मैं और मेरा जो भाई है, हम शरारतें भी करते हैं, तो we post it. सो शायद आप में से एक दो लोग ही मुझे जानते हैं डायरेक्टली, बट वी आर कलीग्स, सो हम सबका एक दूसरे पे हक है। तो बस दुआ में याद रखना। काफ़ी मैंने आप लोगों का टाइम ले लिया है, तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। कोई, हाँ, पूरी तकरीर के दौरान कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकल गई हो जिससे किसी को कोई तकलीफ हुई हो, तो उसके लिए माजरत खाऊं मैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला सी यू। बाकी हाँ भाई, जी जी बॉस, जी बॉस। पुरखा में गाना रह गया आज का। गाना रह गया है यार। अच्छा, गाना रह गया यार। गिटार मैं कहता हूँ रमजान के बाद सुना दूंगा। आज डन आजकल करेगा। हाँ, आजकल वो गाना मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मुझे थोड़ा स्केल पकड़ने दो। हसीब की तरह मैं इतना परफेक्ट तो नहीं हूँ सिंगिंग में। मैं अताई हूँ, माड़ी टहनी हूँ, ठीक है? हाँ, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। दुनिया से शिकायत क्या करनी जब तूने हमें समझा ही नहीं। तूने छोड़ दिया मेरा हाथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। काफी है अली शहजाद। काफी याद आ गया। ओहो, नहीं यार, देखो हावी याद आ गया। याद है हमने हावी का कॉन्सर्ट करवाया था? उससे बेहतर है डफ पे रहे, उस पे नहीं ओहो जाना। टफ याद आ गया यार। दैट वाज टफ, समटाइम इट्स टफ। और एक और चीज़ मैं भूल गया यार, एक दूसरे की मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। अगर किसी को कोई परेशानी हो रही हो, आप लोग प्लीज़ एनजाइटी उसको दिल में मत दबा के बैठा करो, कम्युनिकेट किया करो, बातचीत किया करो अपने दोस्तों से, अम्मी अब्बू से, बहन भाई से, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, किसी स्ट्रेंजर से, बट प्लीज़ दिल में मत दबा के बैठा करो। 4 महीने से मैं ऐसे ऐसे केसेस देख चुका हूँ कि आई एम सो शॉक्ड, ठीक है ना? तो इसलिए हमने पॉकेट थेरेपिस्ट के नाम से एक कम्युनिटी भी स्टार्ट की थी। इट वाज अ स्टार्टअप जिसमें हमारा सिर्फ काम ये था कि वल्लाह आलम मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता बच्चों, हाँ दैट्स ट्रू, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता। तो इसलिए रिलैक्स होना चाहिए। बात जो है ना, दिमाग में स्टोर करने की बजाय कर देनी चाहिए, बात शेयर करनी चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि शायर ने क्या खूब कहा है कि तो क्या हुआ जो टूटा जो सपना ये तेरा, तो क्या हुआ जो तुझको कोई अपना ना मिला। कभी तो पूरा होगा ये चाहतों का घर, कभी तो मिल ही जाएगा तुझको हम सफर। इससे मुराद आपकी एजुकेशन भी हो सकती है। तुझमें ना कमी कोई है, बस तेरा ये दिन बुरा है, वक्त की ये बातें हैं, इसे गुजर जाने दो। अंधेरों से कह दो कि वो यहीं रहे, रात थोड़ी गहरी है, इसे गुजर जाने दो। ठीक हो गया। दिल को खुश रखने के लिए ये ख्याल अच्छा है, बिल्कुल। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।
आप सबकी दुआओं का और आप सब लोगों की प्रेजेंस का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।